أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه۔ آج ہم حدیث شریف کا درس باقاعدہ شروع کر رہے ہیں۔ 2 دن ہم نے تعارف اور علم حدیث پہ لگائے ہیں۔ اصول حدیث یا علم حدیث انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساتھ ساتھ ہم پڑھتے جائیں گے جتنا بھی ممکن ہوا انشاءاللہ تعالیٰ۔ حدیث کے حوالے سے جتنے ٹرمز آپ سنتے ہیں، جیسے یہ متفق ہے حدیث، اور یہ بخاری کی ہے، یہ مسلم کی ہے، یہ ابن ماجہ کی ہے، یہ صحیح حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، اور صحابی تابعی اس طرح کے الفاظ جتنے بھی آپ سنتے ہیں، ان سب پہ انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہم حدیث شریف کا ترجمہ باقاعدہ سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ پہلا جو باب ہے، چیپٹر ہے، یہ ہے ایمان کے بارے میں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبہ فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 73 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور سب سے افضل جو ہے اس میں وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا اس میں جو ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور جو حیا ہے وہ ایمان کا ایک خاص حصہ ہے، شاخ ہے اس کا۔ تو یہ حدیث شریف، اس کو نیچے دیکھیں، نیچے کیا لکھا ہوا ہے یہاں۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بھی ہمارا اصول حدیث اور علم حدیث میں ایک کام ہوگا کہ ہم لوگ صحابی کو پہچانیں کہ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے ہیں یا نہیں، ان کے پاس وقت گزارا ہے، ان سے ملاقات ہے یا نہیں، اور کتنا وقت گزارا ہے، اور مسلمان کب ہوئے ہیں، تو یہ ہم دیکھیں گے۔ نیچے یہ لکھا ہوتا ہے، اس کے بعد لکھا ہوتا ہے متفق علیہ۔ یہ متفق علیہ کیا ہوتا ہے؟ وہذا لفظ مسلم، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ساتھ ساتھ ہم پڑھتے جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایمان جو ہے بدع و سبعون، بدع کا مطلب ہوتا ہے 3 سے لے کے 10 تک۔ عربی میں جب کہنا ہو نا چند، تو یہ چند کی بات ہو رہی ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ 3 سے شروع ہو کے 7 یا 9 تک ہوتا ہے، اس کا عدد ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے، آگے لکھا ہوا ہے نا وہ 70 اور 70، تو 70 کے اوپر 3 یا 4 یا 5 یا 9 تک آپ لے کے جا سکتے ہیں اس کو۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم 73 تو جو ہے نا وہ شاخیں ہیں ایمان کی، اور اس میں افضل ترین جو شاخ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا، یعنی یہ گواہی دینا کہ اللہ جل شانہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور سب سے ادنا یعنی ایمان کی جو شاخ ہے وہ کیا ہے کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہو، کوئی کانٹا ہو، کیل ہو، کوئی گند ہو، کوئی پتھر ہو، وہ ہٹا دینا راستے سے، راستے کھلے رکھنا، راستے کو صاف کرنا، اور راستوں کا حق وہ بھی ہمیں رسول اللہ نے بتایا ہوا ہے، وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ادنا ایمان ہے۔ اگر ہم راستے سے گزر رہے ہیں اور کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے راستے پہ، اور ہمارا ایمان اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم وہ تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹا دیں، یا ہمارا گھر جو ہے اس کی دیوار جو ہے بالکل راستے میں آ رہی ہے، اور اگر آپ اپنے گھر کی دیوار تھوڑی سی پیچھے کر لیں تو راستہ کھل جائے، لیکن ہم اتنا بھی نہیں کر پائیں گے، تو سمجھ لیں کہ ہمارا ایمان اس کی حالت کیا ہے، کس درجے میں ہے۔ اور یہ جو آخری جملہ ہے کہ حیا جو ہے ایمان کا اہم حصہ ہے، یہ اس لیے الگ ذکر کیا گیا ہے کہ لازمی بات ہے، یہ ہم نے کہا نا خاص حصہ ہے، اہم حصہ ہے، اس وجہ سے کہا ہے کہ ایک تو اعلیٰ ایمان بتایا گیا، ایک ادنا ایمان بتایا گیا، اور پھر حیا کو اس میں سے نکال کے بتایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حیا جو ہے یہ اہم حصہ ہے ایمان کا۔ اب آپ میں بتا دوں آپ کو، دوسری حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا جو ہے یہ خیر ہی خیر ہے، تمام خیر ہے، 100% جو ہے وہ خیر ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی حیا کرنا۔
आपको पता है कि बाज अच्छी चीजें जो होती हैं वो भी जो है वो बाज औकात वो ठीक नहीं होती, जैसे सच बोलना है। देखें सच बोलना कितना अच्छा है, और सच के मुकाबले में झूठ होता है। और झूठ को कहा गया है कि ये जो है ये खराबियों की जड़ है, ये गुनाह की जड़ है ये झूठ बोलना। तो हया उसके मुकाबले में सच है। लेकिन फिर भी कहा गया है कि हर दफा सच नहीं बोलना, हर जगह पे सच बोलने की जरूरत नहीं है। अगर दो दिल मिलाने हो, नाराजगी खत्म करनी हो, तो वहां पे आप ऐसा जुमला बोल दें जो नहीं कहा गया हो लेकिन आप कह दो, ताकि एक जो है वो दोस्ती हो जाए, ताल्लुक पैदा हो जाए। तो इसका मतलब है कि सच हर जगह ठीक नहीं है, लेकिन हया हर वक्त बेहतरीन है, हर वक्त और हर जगह पे बेहतरीन है। और मैंने कहा कि मर्दों के लिए और औरतों दोनों के लिए, हम औरत के पर्दे के हया की तो बहुत बात करते हैं, मर्द का जो पर्दा है वो भी उन्हीं आयात में शामिल है जहां पे औरत का पर्दा बताया गया है, बल्कि मर्द का पर्दा उससे पहले है। और मर्द का पर्दा ये है कि वो हया है उसका, क्या करेगा, वो अपनी आंखों को नीचे रखेगा, जो पलके हैं वो बिछा के रखेगा, हराम को नहीं देखेगा। हाँ, नजर पड़ गई तो पड़ गई पहली नजर, लेकिन उसके बाद जो है वो दूसरी जो होगी ना वो तुम्हारे लिए वबाल बन जाएगी, हराम की तरफ होगी। तो आंखें झुकाना था, हया करना था, लेकिन वो हमें रहा नहीं। इसलिए जो है वो हम मर्दों की तो बात ही नहीं करते, खवातीन की बात करते हैं। लेकिन हया बेहतरीन है। वो खवातीन जो मुस्लिम नहीं है वो भी जब मुसलमान औरतों को देखती है तो कहती है कि ये वाकई हया वाली है और ये वाकई महफूज है। तो हया अहम शाख है। अच्छा जी, दूसरी हदीस पाक हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीन आदतें, खसलतें ऐसी हैं कि जिस शख्स में आ जाए वो ईमान की मिठास पालेगा। या दूसरी हदीस पाक में है कि वो इस्लाम की मिठास पालेगा। ये ईमान और जो इस्लाम है इसकी हलावत है, मिठास है, वो उसको मिलेगी जिसमें तीन आदतें हों। नंबर एक क्या है? अल्लाह और उसका रसूल उसे बाकी तमाम चीजों से ज्यादा महबूब हों। ये अब ये बहुत अहम बात है। अल्लाह और उसका रसूल तमाम चीजों से उसे ज्यादा महबूब हो। जिस शख्स से भी उसे मोहब्बत हो वो महज अल्लाह की वजह से हो। और जिससे नफरत करे, यहां तो नहीं है ना, जिससे नफरत करे, बुग़्ज़ रखे, वो भी सिर्फ अल्लाह अल्लाह और उसके रसूल के लिए हो बस। कुफर से निजात पाने के बाद दोबारा हालत कुफर में लौटने को वो इस तरह नापसंद करता हो जैसे वो खुद को आग में फेंका जाना नापसंद करता है, ऐसे ही उसको बुरा लगे। तो ये तीन चीजें हो गई। पहली चीज क्या बताई? कि उसे जो अल्लाह और रसूल है इसकी मोहब्बत के मुकाबले में कोई मोहब्बत ना आए, किसी चीज की भी, किसी भी रिश्ते की। दूसरा ये बताया कि वो किसी से भी मोहब्बत करे या बुग़्ज़ रखे, इस हदीस में सिर्फ मोहब्बत है, किसी से भी मोहब्बत करे तो वो अल्लाह के लिए दोस्ती करे, ताल्लुक रखे। और तीसरा ये कि वो कुफर में जाना दोबारा पसंद ना करे, उसको ऐसा लगे जैसे उसे दोज़ख में डाल दिया गया है, ऐसे उसको बुरा लगे दोबारा ईमान से कुफर की तरफ जाना। ये भी मुत्तफक अलैह हदीस है। ये मुत्तफक अलैह क्या होता है? देखिए अहबाब, दो किताबें हैं हमारे पास, छह किताबों में से दो किताबें जो हैं वो टॉप पे हैं। मैं इनका तफसीली जिक्र बताऊंगा आपको, करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन मुत्तफक अलैह को समझ जाएं कि ये इसका मतलब होता है कि वो हदीस जो बुखारी और मुस्लिम नामी किताबों में दर्ज हो, दोनों में वो हदीस हो, उसको कहते हैं मुत्तफक अलैह हदीस। और ये मुत्तफक अलैह हदीस पता है कौन सी होती है? ये कुरान मजीद के बाद सबसे सच्ची बात होती है। जो मुत्तफक अलैह हदीस होती है वो बुखारी और मुस्लिम दोनों में दर्ज होती है वो हदीस। और उसका दर्जा क्या है? कुरान के बाद सबसे सच्ची बात वो है मुत्तफकुन अलैह। तो ये हमने जो बात की है अभी ना, ये सारी बातें बिल्कुल सच्ची बातें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा जी, तीसरी हदीस पाक देखें, ये हजरत सुफियान बिन अब्दुल्लाह अस्सक़फ़ी से रिवायत है। वो कहते हैं कि कुल तो मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, कुल आप फरमा दीजिए, ली मुझे, फिल इस्लामी कौलन, इस्लाम की ऐसी कोई बात मुझे बताइए, ला असअलु अन्हु अहदन बअदका, कि मैं उसको, उस बात को आपके बाद किसी से ना पूछूं। या फिर दूसरे में आया है कि आपके अलावा किसी से मुझे पूछना ना पड़े, तो मुझे ऐसी कोई बात बता दे। तो अकाला, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल आप ये कहो, आमन तो बिल्लाही,
میں اللہ پہ ایمان لے آیا، بس اتنی سی بات کہو، ثم مستقم، اور اس کے بعد اس پہ استقامت سے رہو، بس اس بات پہ، ایمان پہ۔ یہ وہ ایسی بات تھی جو مجھے بتائی گئی۔ اور اس حدیث کو رواہ مسلم لکھا ہوتا ہے، رواہ یعنی کہ اس کو روایت کیا ہے مسلم نے، مسلم جو ہے وہ امام مسلم نے اپنی کتاب میں مسلم شریف میں اس کو روایت کیا ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتیٰ اکون احب الیہ، یہ حتیٰ کا لفظ عربی کا ہے، یعنی کہ یہاں تک کہ اسے میں عزیز تر نہ ہو جاؤں، سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، اس کے من والدی ہی، اس کے والدین سے زیادہ، وہ ولدی ہی، اور اس کے بچوں سے زیادہ، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، تب تک وہ کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ دیکھا آپ نے؟ اور یہ کون سی حدیث ہے؟ متفق علیہ، یعنی کہ مسلم اور بخاری دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے، اس سے سچی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی کو ایمان کی مٹھاس، ایمان کا کامل درجہ نہیں مل سکتا جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت نہ کرے۔ اچھا، اور بخاری میں جو اسی حدیث کو آگے بڑھایا گیا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے یہ بات کہتے وقت اس سے پہلے قسم کھائی اور فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ تمہیں ایمان نہیں مل سکتا جب تک تم جو ہے مجھ کو تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بنا لو۔ اچھا، حضرت انس کیا فرماتے ہیں اس حدیث کے بعد؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن عبد، کوئی بندہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا رجل، کوئی آدمی مومن نہیں بن سکتا، حتی اکون احب الیہ من اہلہ و مالہ والناس اجمعین، اس میں مال بھی لے کے آ گئے ہیں۔ دیکھیں، پہلے میں تو یہ تھا نا والدین، بچے اور لوگ، اب بعض لوگوں کو اپنے بچوں سے بھی محبت نہیں ہوتی، مال سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کاروبار سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس حدیث میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب تک وہ مجھے اپنے آپ سے زیادہ محبوب نہ کر لے، اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبوب نہ کر لے، جب تک وہ اپنے مال سے مجھے محبوب نہ کر لے، اور والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ کر لے، وہ مومن نہیں بن سکتا، مومن نہیں بن سکتا۔ اس کے نیچے کیا لکھا ہے عبداللہ بن حشام نے؟ کہتے ہیں کننا مع النبی، یہ اتنا سا لفظ ہے، دیکھیں میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، یہ دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے، صحابی نے کیا فرمایا؟ کننا مع النبی، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بس اتنی سی بات ان کو صحابی بنا دیتی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اتنی سی چھوٹی سی بات ہے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے، تو عبداللہ بن حشام کیا ہیں؟ وہ صحابی ہیں۔ یہ ایسا لمحہ ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ان کے ساتھ تھے، آپ یوں سمجھیں کہ یہ اب تمام امت میں سب سے افضل ترین لوگ یہی ہیں، خوش بخت اور صاحب ایمان اور ایمان کے اعلیٰ درجوں پہ فائز، اور جنت میں بھی سب سے اعلیٰ مقام پہ انبیاء کے ساتھ وہ یہ صحابہ کرام ہیں جس کو فرماتے تھے کہ کننا مع النبی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اچھا، کیا ہوا پھر؟ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِهِ بِيَدِ عمر، انہوں نے حضرت عمر ابن الخطاب کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فقال له عمر، تو عمر نے، حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اے رسول اللہ مجھے آپ سے انتہائی محبت ہے، مجھے اپنے یعنی اپنے بعد سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے۔ ہم کہتے ہیں ایسے، ہمیں یعنی مجھے اپنے آپ سے یعنی اپنے آپ کے بعد آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا، نہیں، والذی نفسی بیدہ، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، نہیں، نہیں، حتی اکون احب الیک من نفسک، جب تک تم مجھے اپنے آپ سے بھی زیادہ محبوب نہیں بناؤ گے، نہیں، نہیں، نہیں کا مطلب کیا تھا؟ کہ نہیں، کامل ایمان والے نہیں بن سکتے۔ تو فقال له عمر، تو عمر نے عرض کی فإنه الآن، یہ تھے صحابہ، فرمایا بس پھر یہ ابھی کا وقت ہے، یہ جو آپ نے کہا نا کہ تمہیں جب تک
अपने आप से भी ज्यादा महबूब न बन जाऊं, तब तक तुम कामिल ईमान वाले नहीं बन सकते। तो उमर ने क्या फरमाया, फ़इन्नहु अलआन, तो वो वक्त अभी है, अभी ये ही वक्त है, वल्लाहि, अल्लाह की कसम, लअन्त अहब्बु इलैया मिन नफ्सी, आप मुझे अपने आप से भी ज्यादा महबूब है। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अलआन या उमर, ये यही वक्त है उमर, अब तुम कामिल ईमान वाले बन गए हो। इसको बुखारी शरीफ ने रिवायत किया है। अब आप कहेंगे यार ये मुत्तफक अलैह जो हदीस है ये ज्यादा दर्जे वाली है या बुखारी? हम तो यही सुनते आए हैं कि बुखारी जो है यही सबसे जो है वो आला और अफजल किताब है हदीस में। हाँ बिल्कुल सही सुना है आपने, 6 किताबें हैं, उसका जिक्र आएगा इंशाअल्लाह ताला। उसमें सबसे पहले जो किताब है वो यही है, बुखारी शरीफ है। इसकी जो हदीस होती है वो सही तरीन हदीस है, बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद दूसरी किताब है मुस्लिम। अब वो मुस्लिम जो है वो भी सही तरीन किताब है, और इमाम मुस्लिम जो है इमाम बुखारी के शागिर्द हैं, बल्कि इमाम बुखारी के पाँव का, जो पाँव को धो के वो पानी पिया करते थे बरकत के लिए, उस्ताद थे उनके, उनकी जो किताब है मुस्लिम शरीफ, वो भी सही तरीन हदीस में जमा है। अच्छा, दोनों को अब ये देखिए फर्क कहाँ आता है कि दोनों को हदीस, दोनों की हदीसें सही हैं। तो सबसे आला हदीस किसकी है? मैंने बताया आपको कि वो हदीस सबसे आला अफजल है जो दोनों में आई हो, उसको कहते हैं मुत्तफकन अलैह, कि दोनों मुत्तफिक हो जाएं जिस पे, वो हदीस सबसे आला और अफजल है। अच्छा, वो उसको जमा किया गया है, हमारे उलमा कराम ने जमा किया है, उसका नाम रखा है किताब का अल-लुअलु वल मरजान फीमा इत्तफका अलैहि शेखान, जिसपे दोनों शेख यानी बुखारी और मुस्लिम मुत्तफिक हैं, वो की हदीस अलग करके उन्होंने जमा की हुई है। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इसके बाद हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाहि, ये छोटी सी हदीस याद कर लें अब आप, फरमाया मन अहब्ब लिल्लाहि व अबगद लिल्लाह, जो शख्स अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, दोस्ती करे, और अल्लाह के लिए ही किसी से कीना बुग़्ज़ रखे, दुश्मनी करे, व आता लिल्लाहि, और अल्लाह के लिए ही सदका खैरात करे, किसी को दे, व मना लिल्लाहि, और अल्लाह के लिए ही वो अपने हाथ रोक ले फजूल खर्ची से, तो क्या होगा? फ़क़द इस्तकमल अल ईमान, उसने अपना ईमान कामिल कर लिया है, मुकम्मल कर लिया उसने। और ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, अल्लाह के लिए मोहब्बत करना, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ कर रखना, और अल्लाह के लिए देना, और अल्लाह के लिए मना हो जाना माल खर्च करने से, इसी से ईमान जो है वो कामिल होता है। इसके बाद जो हदीस पाक आ रही है, बहुत प्यारी हदीस पाक है, हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल साथ रहते थे। हम सहाबा की इंशाल्लाह दर्जा बदर्जा पढ़ेंगे, इंशाल्लाह इनके हालात पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इनका ताल्लुक क्या था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। हजरत मुआज बिन जबल, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, यानी आई लव यू, अगर रसूलुल्लाह ने फरमाया है तो वो हजरत मुआज बिन जबल को फरमाया। वो फरमाते हैं कि काला कुन्तु रिदफन नबी, अब देखिए कितने खुशबख्त हैं कि फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठा हुआ था, बिल्कुल पीछे बैठा हुआ था, अला हिमारिन युकाल लहू उफैर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दराज गोश। अब दराज गोश क्या है? दराज गोश का मतलब होता है गधा, जिसको हम गधे कहते हैं, वही गधा अगर उसकी निस्बत और ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल जाए, लग जाए, और वो मशहूर हो जाए, जैसे ये उफेर है, उफेर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गधे का नाम है, लेकिन हम उसको गधा नहीं कहते, हम कहेंगे दराज गोश, लंबे कानों वाला। तो ये अदब है, यही अदब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल को हम बाल नहीं कहते, मुंह मुबारक कहते हैं उनको। इस तरह हर वो चीज जिसका ताल्लुक अल्लाह या उसके रसूल से हो, अहबाब हम अकीदा पढ़ रहे हैं ना, तो अकीदे में ये चीज समझ लें कि जिस चीज की निस्बत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हो जाए उसको कहते हैं शरीफ। ये शरीफ है, हरम शरीफ, हाजी, ये कुरान शरीफ। अब जो भी चीज आप देखते हैं, वो चीज जिससे तुम्हें अल्लाह याद आ जाए, अल्लाह का रसूल याद आ जाए, जिसकी निस्बत अल्लाह रसूल की तरफ हो, जिसका ताल्लुक अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हो, वो शरीफ बन जाती है। चाहे फिर वो कोई करिया हो, कोई गांव हो, कोई शहर हो, कोई मुल्क हो, या फिर वो कोई चीज हो बेजान, वो सब जो है वो आला हो जाते हैं। जैसे ये दराज गोश है, हजरत मुआज ने फरमाया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठा हुआ था दराज गोश पे, फ़क़ाल या मुआज, तो आपने फरमाया या मुआज, मुझे आवाज दी,
تو हल तदरी हक़ अल्लाह अला इबादिही, तुम्हें पता है कि अल्लाह का हक क्या है उसके बंदों पे। वमा हक़्क़ुल इबाद अल्लाह, और बंदों का क्या हक है अल्लाह के ऊपर। वाह वाह, कितना प्यारा सवाल है वल्लाह। फरमाया क्या अल्लाह का हक बंदों पे क्या है और बंदों का हक अल्लाह पे क्या है। कुल, तो मैंने अर्ज किया अल्लाह व रसूलुहु आलम। अब देखिए ना, ये हजरत मुआज जो है, ये अहबाब सुन ले जरा गौर से। हजरत मुआज बिन जबल ये सुहाबा के इमाम हैं, मक्का में और यमन में और पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस शहर में ये गवर्नर रहे हैं, मुअल्लिम रहे हैं, मुअल्लिम है ये। अच्छा, ये फरमा रहे हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम। बस सबसे आसान सवाल है, सबसे अदब का तकाजा यही है कि मैं कहूँ अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है जी, मैं मुझे नहीं पता। आप ही फरमाएं। काला, तो आपने फरमाया फ़इन्न हक़्क़ अल्लाहि अलल इबाद, अल्लाह ताला का हक अपने बंदों पर यह है अन यअबुदूह, कि वो इसकी इबादत करे। अल्लाह का हक हमारे ऊपर यह है कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। वला युशरिकू बिही शैअन, और उसके साथ किसी किस्म का भी शिरक ना करे, किसी किस्म का भी शिरक ना करे। ये देखो, हम लोग जैसे आम मुसलमान हैं, इनका शिरक तो यही है ना कि हम किसी और को सजदा करें। लेकिन जैसे जैसे इंसान का मर्तबा बुलंद होता है, जैसे औलिया अल्लाह थे, वो ऐसी निस्बतें भी किसी की तरफ नहीं करते थे जिससे गैर का शाइबा नजर आ जाए। मतलब एक दिल है ना, तो एक ही महबूब बसा के रखे थे। हम तो पता नहीं अपने दिल में कितनी मोहब्बतें सजा के बैठे हुए हैं। वो जो औलिया अल्लाह बन जाते हैं, अल्लाह के हो जाते हैं, वो फिर वो निस्बत भी किसी गैर की तरफ नहीं करते जिसकी निस्बत अल्लाह की तरफ हो जाती है। नहीं, मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से करनी है, बस अल्लाह के रसूल से करनी है, और अल्लाह रसूल की मोहब्बत एक ही है। तो वो हजरत बायजीद बुस्तामी जो है, वो किसी सेब को देखा, तो सेब सेब बहुत खूबसूरत था, सुर्ख सफेद जिस तरह भी था। तो आपने फरमाया क्या लतीफ सेब है। अब लतीफ अल्लाह का नाम था, अल्लाह पाक फौरन दिल में ख्याल आया हजरत बायजीद बुस्तामी का कि ये मैंने क्यों अल्लाह का नाम एक सेब पे दी। उस पे जनाब उन्होंने तौबा की और रोने लग गए। तो यानी इतना भी उनका यानी वो बर्दाश्त नहीं करते थे। तो फरमाया स्टडी वला करेगा। युशरिकू बिही शैअन, के उसके साथ किसी किस्म का भी जो है वो शिरक ना करे। वहक्कल इबाद अल्लाह, करेगा और ना। तेरी मस्त है, मैं तो क्या? कह रहा हूँ बस। सबतैन भाई, सबिहा। अच्छा जी, वहक्कल इबाद अल्लाह, और अब बंदों का हक अल्लाह पर क्या है। पहले ये समझ लिया हमने कि अल्लाह का जो हक है बंदों पर वो क्या है, कि वो उसकी इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराए। अब बंदों का क्या हक है अल्लाह के ऊपर। फरमाया अल्लाह युअज़्ज़िबा मन ला युशरिकु बिही शैअन, कि अल्लाह पर हमारा हक ये है कि वो हमें अजाब न दे, हर उस शख्स को अजाब ना दे जिसने कोई शिरकी नहीं किया जिंदगी में। फ़कुल तो या रसूल अल्लाह, मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये तो बहुत आसान बात थी और बड़ी बड़ी खुशखबरी है इसमें, कि यानी हमारा यानी हम अल्लाह की इबादत करेंगे और वो हमें अजाब नहीं देगा। तो मैं अफला उबश्शिरु बिहिन्नास, क्या मैं लोगों को ये खुशखबरी न सुना दूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से ही जो है वो जन्नत में चले जाएंगे। काल ला, ला तुबश्शिरुहुम फयत्तकिलू, अगर तुम उनको ये खुशखबरी सुना दोगे तो वो लोग इसी भरोसे पे बैठ जाएंगे। इसी भरोसे पे क्या तर्जुमा फरमाया है, उन्हें ये खुशखबरी मत दो कि फिर वो इसी पर भरोसा करके बैठे रहेंगे, यानी कि अमल में कोताही करेंगे। लेकिन हमें खुशखबरी तो मिल गई है ना। हजरत मुआज बिन जबल ने ये खुशखबरी सुनाई थी, फिर बाद में जब उनका इंतकाल होने लगा उन्होंने ये खुशखबरी, ये जो हदीस पाक थी ये सुना दी। फिर उन्होंने कहा कि मैं गुनाहगार ना हो जाऊं, ऐसा ना हो कि मैं गुनाहगार हो जाऊं कि मैंने हदीस को जो है अपने पास छुपा के रखा हुआ है। अल्लाह अकबर। ये दूसरी हदीस है ना, इसमें ये मुत्तफकुन अलैह हदीस पाक है जो आगे आ रही है, और ये वही हदीस पाक है। देखिए इसमें कितना अदब है। फरमाया हजरत अनस बिन मालिक, इनका पूरा नाम याद रखें, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मुआज़ुन रदीफुहु। हजरत अनस फरमा रहे हैं कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुआज बैठे हुए थे अला रहली, सवारी पर। काल या मुआज इब्न जबल, ए मुआज जबल के बेटे। काल लब्बैक या रसूल अल्लाह, ए मेरे अल्लाह के रसूल, मैं हाजिर हूँ। वसादेक, ये भी अदब का कलिमा है, वसादेक, और मैं हाजिर खिदमत हूँ। काल या मुआज लब्बैक या रसूल अल्लाह वसादेक, ये रसूलुल्लाह आवाज देते थे और वो जवाब देते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, 3 दफा। सलासन, 3 दफा ऐसा हुआ।
कि रसूलुल्लाह ने पीछे मुड़ के उनको कहा या मुआज, और आपने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, 3 दफा। काला, अब इसके बाद यानी अहम बात है ना, इसलिए आपने क्या फरमाया, मा मिन अहदिन यशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, कोई आदमी भी जो ये गवाही दे दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, सिदकन मिन कल्बिही, सच्चे दिल से, इल्ला हर्रमल्लाहु अलन नार, अल्लाह ताला उसे दोजख पे हराम कर देगा, जो ये कलिमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। काला या रसूल अल्लाह, मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये मुआज ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अफला उखबिरु बिहिन्नास फयस्तबशिरू, क्या मैं लोगों को ये खबर न सुना दूं तो वो खुश हो जाएंगे। काला इजा इजन यत्तकिलून व अखबर बिही मुआज इन द मौतिही तअस्सुमन, और आपने फरमाया कि अगर तुम ये खबर दे दोगे कि सिर्फ कलमा पढ़ लेने से ही अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल कर देगा, और कर देगा, तो क्या होगा, ये लोग जो हैं इसी पे भरोसा करके बैठ जाएंगे और अमल नहीं करेंगे। अब आप याद रखिए, जन्नत में जाना जो है, याद रखें अब आप, जन्नत में जाना वो अमल के जरिए नहीं है। कोई एक मुसलमान भी अमल से जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सुहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आप भी नहीं? आपने फरमाया नहीं, मैं भी नहीं, जो भी दाखिल होगा वो अल्लाह के फजल से दाखिल होगा, अल्लाह के फजल से दाखिल होगा। तो कोई भी, लेकिन अमल क्या करेगा, अमल आपके दर्जात बुलंद करेगा, जो दर्जे हमें जाके वहां अबदी जिंदगी में हमें चाहिए, वो दर्जात आपके बुलंद करेगा। और हुक्म है अल्लाह और उसके रसूल का, हम तो इसलिए अमल करते हैं। तो आपने, मुआज ने ये खबर दे दी है, इन द मौत ही तासुमन, अपने मौत के वक़्त, इंतकाल के वक़्त ऐसा ना हो कि गुनाहगार हो जाऊं। ये हदीस पाक मुत्तफक अलैह हदीस पाक है। सुबहान अल्लाह ताला। चले, इतना भी काफ़ी है आज के लिए। और ये वक्त देखो अहबाब, याद रखें कि आपको जल्दी आना चाहिए, 10:30 बजे का टाइम है, 10:30 बजे ही आप आएँ, तो हम जल्दी से शुरू करेंगे और ज़्यादा पढ़ेंगे। आपको पता है कि इस किताब में 1100 अहादीस हैं, 1100 अहादीस। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ये किताब मुकम्मल करें रमज़ान पाक में, तो हमें 40 अहादीस कम से कम पढ़नी पड़ेंगी रोज़ाना। तो अगर आप टाइम पे नहीं आएंगे तो हम शुरू नहीं कर पाएंगे। तो आप मेहरबानी करें, जल्दी आया करें। जी तारिक खटक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम असद साहब। माशाल्लाह जी, आपने बड़ी बेहतर तरीके से तमाम अहादीस को एक्सप्लेन किया। मेरा थोड़ा सा एक छोटा सा सवाल है, मैं बड़ी ब्रीफ और कंसाइज होकर इसका आपको